بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. محترم و مکرم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سکون کا ماحول بنائیں. جو لوگ کیمرہ کے قریب میں ہیں وہ تھوڑا سا دور ہو جائیں تاکہ ریکارڈنگ اور اسی طریقے سے جو باہر لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں صحیح سے دکھائی دے. کیمرہ بار بار ہل رہا ہے، جس کی وجہ سے رحیم پورہ کی سرزمین پر مسلسل کئی سالوں سے پروگرام یہاں کے نوجوان کراتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سال بھی الحمدللہ خیر امت کانفرنس کے نام سے پروگرام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک کئی علماء کرام اپنا خطاب فرما چکے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں خیر امت کا کردار. فتنہ یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں سونے کو آگ کی بھٹی میں تپا کر
کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا. یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. اور یاد رکھیے گا ہر آنے والا وقت پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکلات، مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا ہوگا. اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو ہر دور میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کہتی ہے. یہاں کیا کریں گے کہ جس سے آخرت کے لیے بہتر ہو. ہم نیکی کریں تاکہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جگہ دے. اس دنیا کے اندر ہم اللہ کو خوش کریں تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جب نامہ اعمال کا وقت دینے کا وقت آئے تو اللہ رب العزت کے طرف سے جب نامہ اعمال ملے تو وہ داہنے ہاتھ میں. اور اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور اس دنیا کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، فتنے، خیر اور شر دونوں سب چیزیں موجود ہیں. اور اللہ رب العزت تمام بندوں کو آزمانے کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، اچھائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، فتنے میں ڈال کر فتنے میں نہ ڈال کر، دونوں طریقے سے آزماتا ہے. اللہ رب العزت سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور امتحان کے طور پر خیر اور شر دونوں طریقے سے میں آزماتا ہوں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور آخر کار تم سب لوگوں کو میری طرف آنا ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہو چکا ہے. اس دنیا کے اندر ہم ہیں، اللہ کہہ رہا میں خیر کے ساتھ بھی آزماؤں گا اور شر کے ساتھ بھی آزماؤں گا. تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ بھلا ہو رہا ہے، تم بیماری میں ہو، تم بھلائی میں ہو، بیماری میں نہیں ہو، صحت یابی میں ہو، ہر طریقے سے آزماؤں گا. آزمائش کی گھڑی ہے، آزمائش کا وقت ہے، نہیں ہے، فیصلہ کیجیے. اللہ رب العزت کبھی مصائب کے ذریعے آزماتا ہے، مصیبتوں کا انبار ہے، مصیبتوں کا سامنے پہاڑ ہے. اور اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، خوشحالی 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 خوشحالی. اللہ رب العزت کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے. آج دیکھ لیجئے ہر گھر میں لوگ بیمار پڑے. کسی سے بھی حال پوچھیے کیا حال ہے، بس وہی جو وائرل چلا ہے. کیا حال ہے، وہی موسمی ہے. ہر گھر میں ڈینگو کے مریض ہیں، ہر گھر میں دیکھیے بخار ہے لوگوں کو. آج دیکھیے اچھا خاصا انسان مل رہا ہے، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے. شام کو ملا، بھیا چل ہی نہیں پا رہا ہوں میں، گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں، جوڑ جوڑ میں درد ہے، ایک قدم نہیں بڑھا پا رہا ہوں. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ جب یہ صحیح صحت یاب ہمیں کر دے، اللہ رب العزت جب ان بیماریوں کو دور کر دے تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی آزمائش. اللہ بیماری دے کر بیماری لے کر آزماتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت مال دے کر اور مال لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ روپیہ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ رب العزت کام دھام بڑھیا چلا کر بھی آزماتا ہے اور کام دھام کو اللہ رب العزت بند کر کے بھی آزماتا ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے. ساڑی کا دھندا بہت بڑھیا چلتا ہے، ہم لوگ خوشحال تھے، ساٹن بن رہے ہیں، دن بھر میں 2 3 ساڑی تھی، لے کر جاتے تو خوش و خرم رہتے تھے. کیا بھائی آج 2 ساڑی، بڑھیا پیسہ ہے. ہفتے میں جمعہ کے دن پہنچے، اتنی ساڑی تھی بک گئی. لیکن آج کیا ہے، ساڑیوں کا انبار ہے، 2 3
دو 3 لوگ جو بھی مل رہے ہیں، کہو نہیں بھائی 50 ساڑی ہے، 100 ساڑی ہے، 200 ساڑی، 400 ساڑی، 500 ساڑی، انبار لگا ہوا ہے، کیا ہوا؟ اللہ مال دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، اللہ مال لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، اللہ رب العزت خوشحالی میں بھی آزماتا ہے، اللہ رب العزت سستائی میں بھی آزماتا ہے، اللہ مہنگائی میں بھی آزماتا ہے۔ یہ رب کا قانون ہے۔ یاد رکھیے گا، اہل ایمان کو اللہ رب العزت کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العزت اہل ایمان کو کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ یہ شکر گزار ہے کہ نہ شکر ہے۔ آج ساڑی نہیں بک رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ گالی دے رہے ہیں۔ آج ساڑی نہیں بک رہی، مشینیں بند ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کن کو؟ فلانوا ہے، ڈھمکوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ ان کے دور میں اچھا تھا، یہی جملہ، ان کے دور میں اچھا تھا، ان کے دور میں اچھا نہیں ہے، ان کا دور بہت بڑھیا تھا، ان کا دور برا ہے، یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر ہم اہل ایمان ہیں تو خوش ہو جائیں، ہم شکریہ ادا کریں۔ اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، اللہ تو جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں، اللہ میں خوش ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے کچھ شکوہ نہیں ہے، آج تو مجھے نہیں دے رہا ہے، آج کم ہے، کل زیادہ ہوگا، کل پھر کم ہو جائے گا، پھر زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں بڑے ہی واضح انداز میں کہتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اس بات، اللہ کیا کہتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے کہ میں ایمان لے آیا، آزمائے نہیں جائیں گے؟ آج مولوی غفران کہتے ہیں میں تو محمد رمضان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے ابا مسلمان ہیں، میرے دادا مسلمان ہیں۔ کیا مولوی غفران کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی ان سے پہلے اور جو لوگ اہل ایمان تھے، اللہ نے ان لوگوں کو بھی آزمایا۔ اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا لبادہ اڑا ہوا ہے، صرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، میں مسلمان ہوں، میرا نام محمد غفران ہے، لیکن اندر کچھ اور کھچڑی پکڑی ہو۔ ایسا تو نہیں، اللہ آزمانا چاہ رہا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے مال و دولت، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کن کن صورتوں میں آج ہوتی ہے، یا ہو چکی یا ہونے والی ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مال اور دولت کی وجہ سے آزماتا ہے۔ غور سے سنیے، یہ مال جس سے بڑی محبت ہے، آ رہا ہے، ماشاءاللہ آ رہا ہے، الحمدللہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے نا، بہت اچھا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جیسے ہی یہ مال ختم ہونے لگے، مال نہ آئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ شروع ہو گیا گریہ وزاری، ہو ہی نہیں رہا، یہ ہے وہ ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد، یہ دونوں فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ جب یہ مال اللہ کے فرائض سے تمہیں غافل کر دے، جب یہ مال کمانے کے ذریعے یہ دکان دوری، یہ تمہارے ریڑھی لگانا، یہ بازاروں میں جا کر بیچنا، یہ تم بازاروں میں دکان لگاتے ہو، مشین چلاتے ہو، جب یہ دکان، یہ ٹھیلے اور یہ مشین تمہیں نمازوں سے روک دے، فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مال آئے چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، کوئی تمیز نہیں ہے، مال آئے، بس مال آئے، کسی طریقے سے مال آئے۔ لیکن میرے نبی کا فرمان یہ نہیں ہے، یا اللہ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ مال چاہے جیسے آ جائے، بلکہ مال میں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ مال کہاں سے کما رہے ہو؟
कैसे कमा रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो। क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। तुम्हारे कदम हिल नहीं सकते हैं जब तक कि जवाब न दे दो। माल कहाँ से कमाए थे, कहाँ खर्च किए, यानी हलाल तरीका था कि हराम तरीका था, खर्च कहाँ किए, फिल्म देखने में, किसकी फिल्म, खान साहबों की फिल्म देखने में, या कहाँ खर्च किए, नेट पैक भराने में, या कहाँ खर्च किए। जिन जिन चीज़ों में खर्च किए हो, क़यामत के दिन जब तक जवाब नहीं दे लोगे कदम नहीं हिलने वाला है। हिला लो कदम। जब ये माल नमाजों से दूर कर दे, जब ये माल कुरान से दूर कर दे, जब ये माल और दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इताअत से दूर कर दे, जब ये माल सुन्नत से दूर कर दे, जब ये माल और दौलत सुन्नत से नफरत करने का तरीका बता दे, ये याद रखना कि ये तुम्हारे लिए फितना है। माल कैसा हो चाहे जैसा नहीं, माल कैसे आए ये हम पर हमें ये फार्मूला अपनाना चाहिए कि माल कैसा हो नबी के कहा जैसा है। नबी ने कैसे कहा है माल कमाने को, किसी को धोखा मत। साड़ी के अंदर कोई ऐब आ जाए तो बता दो, ये साड़ी के अंदर ये ऐब है, ये कपड़ा है इसके अंदर ये ऐब है, ये सब्जी दे रहा हूँ इसके अंदर ये ऐब है, ये फला चीज़ दे रहा हूँ ये ऐब है। ऐब बता दो तो ठीक है। और इसी तरीके से शौहात के फितने के जरिए आजमाए गए। मनमानी चाहत, यानी जो दिल में आयो कर ले, दिल के अंदर आए जुआ खेलने की जुआ खेल ले। ये शौहत जो पैदा हो रही, ये चाहत जो पैदा हो रही, दिल के अंदर ये आ जाए कि शराब पी ले, ये भी आजमाइश। इन शौहात जो दिल के अंदर पैदा हो रहे, अल्लाह इनके जरिए भी आजमाएगा। दिल के अंदर ये पैदा हो जाए कि नहीं फलां को हम अपना गर्लफ्रेंड बना ले, ये भी याद रखना कि ये फितना है। जब तुम्हारे दिल में ये पैदा होने लगे, मनमानी चाहते आने लगे, याद रखिएगा कि ये फितना है और अल्लाह आजमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर बड़े ही वादे अंदाज में फरमाता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 में अल्लाह कहता है, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनामि वल हर्स। ये अल्लाह का फरमान है। लोगों के दिलों में मन चाही मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई। गौर कीजिए अल्लाह क्या कह रहा है। अहले ईमान जागो, ऐ ईमान वालों जरा गौर से सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है। लोगों के दिलों में मनचाही चीज़, मनपसंद चीज़ों को की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है। उन मनपसंद चीज़ों में क्या है, औरतों की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। औरतों की मोहब्बत में आज हर नौजवान गिरफ्तार है। शादी हो गई है तो भी, शादी नहीं हुई है तो भी, शादी हो गई है तो बीवी की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत खत्म, माँ की ममता को भुला दिया, बाप के मोहब्बत को भुला देते हैं, बहन की मोहब्बत को भुला देते हैं। शादी होते ही घर बार अलग है, न बाप से मतलब है, न माँ से मतलब है, न बहनों का ख्याल है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मनपसंद चीज़ों की मोहब्बत दिलों में कूट कूट कर भर दी गई लोगों की। उसमें पहली चीज़ मिनन निसा, औरतों, वल बनीन, बेटों की मोहब्बत, और सोने और चांदी के ये खजाने जो हैं, कमाए हुए हैं जो हैं, रखे हुए जो हैं, इनकी मोहब्बत, बेहतरीन किस्म के घोड़ों की सवारियों, चौपायों की, खेतों की मोहब्बत। लेकिन अल्लाह ऐलान कर रहा है, ज़ालिका मताउल हयातुद दुनिया, ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये दुनियावी साजो सामान है। अल्लाह के यहाँ जो है, अल्लाह जो देने का वादा करता है वो इससे, अल्लाह के ने जो देने का वादा किया हुआ है वो इससे बेहतर है। ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया की चीज़ें लुट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आज आपके पास, कल किसी और के पास। आज आप अमीर हैं, कल कोई अमीर हो, कोई और अमीर होगा। कल दिन मौली गुफरान गरीब थे, आज अमीर है। आज मौली गुफरान अमीर है, कल गरीब हो जाएंगे। ये किसी की मिल्कियत नहीं है। ये जब ये कभी किसी के पास आती है, कभी किसी के पास से जाती है। मेरे भाइयों, इसकी मोहब्बत जो दिल में बैठाए हुए हैं, ये दुनियावी साजो सामान है। अल्लाह के पास जो है इससे बेहतर है। मेरे भाइयों, और कौन से फितने हैं? सोशल मीडिया का फितना। आज देख लीजिए, सोशल मीडिया का फितना बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है। आज हर शख्स इसमें गिरफ्तार है। ये सोशल मीडिया का फितना, जो फेसबुक 10 साल पहले चलाते थे, कभी गाना सुने थे फेसबुक पर? बताए कोई? 10 साल 12 साल पहले जो फेसबुक चलाया जाता था, कभी गाना सुने थे उस पर? नहीं। आज है उस पर। जो नौजवान
सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वो जानते होंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। क्या था ये? फेसबुक बनाया किस लिए गया था? ज़रा तारीफ पढ़िए, दोस्तों से बात करने की। आज एक याद रखे बेशर्मी का अड्डा हो चुका है, बेहयाई है उसमें। पर्दे नाम की चीज़ कुछ नहीं, हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक तरीके से फितना उठ चुका है, इसको दबाने की ज़रूरत है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ज़रा इसका इस्तेमाल इस हिसाब से करिए कि क़यामत के दिन जब नामा आमाल हाथ में हो तो ये ना हो कि अरे फलाने मियाँ मौलाना गुफरान ज़रा देखिए, आप फला तारीख में, फला दिन, आप फला वक्त में एक गाना फेसबुक पर डाले हुए थे, 1000 लोगों ने देखा, 1 लाख लोगों ने देखा। आप देखेंगे वो तमाम लोगों के गुनाह, 1 लाख जो देखे हुए तमाम लोगों के गुनाह आपके नामा माल में है। मेरे भाइयों, ये फितना नहीं तोड़। बहुत शौक है आज नौजवानों को सोशल मीडिया पे गाना डालने के। बहुत सारे लोग मेरे अकाउंट में हैं, जब खोलिए उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखने के लिए तो गाना है कि नहीं? मेरे भाइयों, फितना है। 30 सेकंड का गाना है, आज हर नौजवान लगा रहा है, लेकिन एहसास नहीं है उसे कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एहसास नहीं कि कहाँ जा रहा है, उसे एहसास नहीं कि नामे आमाल में क्या लिख रहा है। क़यामत के दिन मेरे भाइयों, जब नामे आमाल होगा तो रोओगे उस दिन। जब नामे आमाल होगा तो तुम तसव्वुर जो नहीं कियोगे वो भी गुनाह वहाँ पर होंगे, तब क्या करोगे? कुछ मौका हाथ नहीं होगा। ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब फितना। मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात मुबारका के अंदर ही बहुत सारे फितनों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये फितने होंगे, ऐसे फितने होंगे। और इन्हीं फितनों के मद्देनज़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? ज़रा एक हदीस देखिए, मुस्लिम शरीफ की 118 नंबर की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, बादिरु बिल आमाल फितनन कक़ितिल लैलिल मुज़लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम लोग इन फितनों से पहले जल्दी नेकी कर लो, यानी ये फितने की घड़ी आ जाए इससे पहले तुम लोग जल्दी नेकी कर लो। और ये फितने कैसे होंगे? ये फितने तारीख रात के टुकड़ों के मानिंद होंगे, यानी ये फितने जो तुम लोगों के लिए दरमियान आएंगे ऐसे फितने होंगे, तारीख रात के टुकड़ों के मानिंद होंगे। इनके आने से पहले जल्दी तुम नेकी कर लो, कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नेकी को काम कर लो, कुरान की तिलावत करो, सदका व खैरात करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो फितने का दौर ऐसा दौर होगा कि जिस दिन आदमी युस्बिहु रजुलु मुमिन व युमसी काफिर, ये आदमी सुबह तो इस हाल में करेगा कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिर, और वो फितने का दौर ऐसा होगा, वो फितनों का दौर ऐसा होगा मेरे भाइयों कि आदमी रात को तो मोमिन होगा लेकिन सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और वो फितने का दौर ऐसा दौर होगा कि मेरे भाइयों कि आदमी अपने ईमान का सौदा चंद टकों के बदले कर देगा। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, ये फितने के दौर आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है, फितनों के दौर में खैर उम्मत का क्या किरदार है? उम्मत मोहम्मदिया का क्या किरदार है? क्या किरदार होगा? आज उम्मत मोहम्मदिया की क्या हालत है? आज खैर उम्मत की क्या हालत है? वो खैर उम्मत जिनके अखलाक, जिनके आदाब और जिनके तमाम हरकत व सकनात से लोग मुतासिर होकर मुसलमान हुआ करते थे, आज ये खैर उम्मत की क्या हालत है? वदा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हो लोद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। ये खैर उम्मत की हालत है मेरे भाइयों। आज ये खैर उम्मत गैरों के फैन हैं, ये खैर उम्मत गैरों के तरीके पर चल रहे हैं। ये खैर उम्मत के नौजवानों के बाल देख लीजिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों की चाल देख लीजिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के कपड़े देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के चलने का अंदाज देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों पे मोबाइल के इस्तेमाल करने का अंदाज देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के हालात देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के रातों दिन देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के शौक देखिए। ये खैर उम्मत का किरदार क्या होना चाहिए? भूले पड़े हुए। दर्स लेकर जाइएगा कुछ, क्या किरदार होगा? नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, रातों को मैच खेलेंगे, रातों को मैच देखेंगे, सट्टेबाजी करेंगे,
वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल का इंतजार करेंगे। क्या करेंगे ये खैर उम्मत के नौजवान? नमाज पढ़ेंगे। ये खैर उम्मत के नौजवान नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे भाई, एक बार कह तो दीजिए इंशाअल्लाह। ये खैर उम्मत के नौजवान गैरों जो ये आजकल जो आधा बाल उड़ा देते और बीच में से जो बाल खड़ा कर लेते जानवरों की तरह, वो रखेंगे? अहद कीजिए। ये जो बाल कटवा लेते हैं, कौन बॉलर है? फलाने बॉलर है, उसका बाल यहाँ से उठा, बीच में से उठा हुआ, रखेंगे? वादा कीजिए। हम लोग खैर उम्मत हैं। कितने लड़के छुपा रहे हैं अब बाल। मैं सबको कह रहा हूं, किसी पर मैं ताना नहीं कस रहा हूं। बाल उस तरीके से रखेंगे कि वो बाल रखेंगे कि जो बराबर हो। बोलिए नौजवानों, बोलिए, मैं आप ही से मुखातब हूं, आप ही मुस्तकबिल है हमारे। खैर उम्मत, ये खैर उम्मत के ये जो मिशन है आगे बढ़ाने वाले आप हैं। वो बाल रखेंगे? कहिए नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। आज से जोर से कहिए नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। अहद कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर है, याद रखिएगा। अल्लाह के घर में बैठकर वादा किए हुए हैं अल्लाह के घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर उम्मत का किरदार क्या होना चाहिए? खैर उम्मत का किरदार क्या होगा? सबसे पहले फितनों के दौर में खैर उम्मत अल्लाह से पनाह तलब करे। क्या करें? अल्लाह से पनाह तलब करे। अल्लाह से कहे कि अल्लाह मैं तेरे पनाह में आता हूं। ये फितने का दौर है, अल्लाह मैं तेरे पनाह में आता हूं। ये फैशन का दौर है, अल्लाह मैं इससे बचना चाहता हूं। ये फलाने मियाँ के बाल कटे हैं ऐसे, अल्लाह मैं इससे पनाह में आना चाहता हूं। अल्लाह ये सूद का फितना है, मैं इससे पनाह में आना चाहता हूँ। अल्लाह ये ज़िनाकारी का फितना, अल्लाह मैं पनाह में आना चाहता हूँ। अल्लाह ये सोशल मीडिया का फितना, अल्लाह मैं पनाह में आना चाहता हूँ। पहले पनाह तलब करें। हदीस उठाइए, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस के रावी हैं। मुस्लिम शरीफ में 2867 नंबर का हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, कि तमाम फितनों से तुम लोग पनाह तलब करो जो छुपे हुए हैं और जो जाहिर हो गए। यानी अगर ज़िनाकारी का फितना देख लिए हो, अगर बाल का फितना देख लिए हो, पैंट फटे का फितना देख लिए हो, सट्टेबाजी का फितना देख लिए हो, और इसी तरीके से माँ बाप के जो सताए जा रहे हैं, ये भी एक तरीके का फितना है। माँ बाप को जो लोग मार रहे हैं, अगर ये चीज़ें देख रहे हैं, ये भी फितने में है। अगर ये चीज़ें देख लियो, अल्लाह से पनाह तलब करो। जो नहीं देखे हो, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जो जाहिर है, जो बातिन है, तमाम फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करो। सहाबा किराम क्या कहते हैं? क़ालू नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो सहाबा किराम ने कहा, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं जो फितने ज़ाहिर हो गए और जो फितने छुपे हुए हैं। ये सहाबा का मियार था, ये सहाबा किराम का मामला था। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि इससे पनाह मांगो, इससे पनाह मांगो। अल्लाह के नबी ने ये कहा जो फितने ज़ाहिर हैं, जो बातिन हैं, जो छुपे हुए, जो खुले हुए, उनसे पनाह मांगो। सहाबा किराम ने कहा, बैद ज़बान कहा, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं जो फितने ज़ाहिर हो गए, जो फितने छुपे हुए हैं, जो फितने खुले हुए हैं, जो फितने छुपे हुए, तमाम से पनाह में आते हैं। हमारा मियार क्या है? हम कहाँ हैं? ये खैर उम्मत कहाँ है? कहाँ पर हैं हम? जरा और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि फितनों से पनाह मांगे। क्या कहा? हदीस उठाइए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। तिरमिज़ी में यह हदीस 3233 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या मोहम्मद इज़ा सल्लैत फ़क़ुल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नमाज पढ़ लें तो कहें। ऐ मोहम्मद, कहने वाला कौन है? हमारा रब।
اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے. اے محمد جب آپ نماز پڑھ لیجئے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یہ آپ اللہ سے کہیے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کی کاموں کے لیے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکینوں سے محبت کرنے لگوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے میرے روح کو قبض کر لینا. اے اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا. یہ میرے نبی کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے, اللہ رب العزت سکھا رہا ہے. میرے نبی کہہ بھی رہے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کے لیے. ہم سوال نہیں کرتے, اللہ سے کہہ رہے نبی اللہ گناہوں کے چھوڑنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں. ہم نہیں کہتے ہیں اے اللہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنے کا میں سوال کرتا ہوں. لیکن آج غریبوں سے ہم نفرت کرتے ہیں, مسکینوں سے نفرت کرتے ہیں. مسکین ہمارے گھر نہیں آنے چاہیے, غریبوں کو ہم اپنے دعوت میں نہیں بلاتے ہیں. میاں ہمارے لڑکے کا ولیمہ ہے لیکن ولیمہ میں آنے والا کون ہے؟ فلانے گدیدار ہیں, فلانے سیٹھ صاحب ہیں, فلانے میاں ہیں جن کے کروڑوں کی جائیداد ہے, جن کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں, جن کی اتنی زمین جائیداد ہے, اتنے رتبے والے ہیں, اتنے شہرت والے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کا انبار ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا تو غریب ایک نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو غریب ایک جو ہمارا پڑوسی ہے وہ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے تو کون؟ ایک صحیح العقیدہ ایک صحیح منہج پر چلنے والا نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں دعوت بھی بانٹ دیے گئے ہیں. مسکینوں کو کی بات الگ ہے لیکن آج وہاں بھی سنی اور اسی طریقے سے دیوبندی میں اس طریقے سے روڑا اٹکایا جا رہا ہے, اس طریقے سے پیسا جا رہا ہے کہ مسکینوں کی بات میں کیجئے. پہلے وہاں بھی اور سنی میں ہم لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلے مولی غفران سے بہت لوگ سلام کرتے تھے, آج نہیں کر رہے. پہلے بہت لوگوں کے ہاں یہ تھا لیکن آج نہیں ہے. یہ دکھ کا ماحول ہے. مجھے دعوت نہیں چاہیے صاحب. ایک خون کا آنسو روئیے کہ وہ اتحاد کہاں گیا جب تمام لوگ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن آج وہابی, دیوبندی, بریلی, یہ ٹوپی وہ ٹوپی, یہ پگڑی وہ پگڑی اس میں بٹے ہوئے ہیں. میرے بھائیو اللہ سے پناہ طلب کر, یہ بھی ایک طریقے کا فتنہ ہے. ذرا اور آگے بڑھیے. ان فتنوں کے دور میں خیر امت کا کردار یہ ہوگا عقید توحید کی حفاظت کرے, اپنے عقید توحید پر ثابت قدم رہے, ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے. یہ فتنے کا دور ہے. مصیبتیں آئے, پریشانیاں آئے, بچے نہ ہوں, گھر کے اندر کلکاریاں نہ ہو, فلانے یہاں چلے جاؤ. گئے بچے ہو گئے. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے 2-3 سال بیت گئے, اجمیر شریف کا بھی چکر لگا ہے, مراد پوری نہیں ہوئی. ہاں صاحب جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. بچے نہیں ہوئے, چلو اجمیر شریف. کہاں گیا عقیدہ؟ نکل گیا جنازہ. یہ فتنے کا دور ہے. پریشانیاں آ جائیں, گھر کے اندر شیشہ ٹوٹ جائے, بچے گرنے لگے, سامان گر کر ٹوٹنے لگے, کچھ ہو جائے, بلی کود جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, عقیدہ بگڑ جاتا ہے ہمارا. کیا کریں گے اس فتنے کے دور میں؟ اس عقیدے کو پکڑ کے. شیشہ ٹوٹ کے جانے دیجیے صاحب. رات میں جھاڑو نہیں لگانے کا, گھر میں ٹوٹی کنجی نہ ہو بھیا, گھر کے اندر الٹے چپل نہ ہو بھیا. دلہن فلاں ٹائم آنا چاہیے, اماوس کی رات ہے, فلانے کی رات ہے, 3, 13, 23, 24, 25, 26 کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. عقیدہ یہی ہمارا بگڑ رہا ہے. کہاں عقیدہ ہے ہمارا؟ اس فتنے کے دور میں ہمارا سب سے پہلا کردار یہ ہوگا کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, اور جو بھی پریشانیاں آئیں, جو بھی مصیبتیں آئیں, جو کچھ بھی آئے, یہ تصور کر لے کہ اللہ کی طرف سے, مان لے کہ اللہ کرنے والا ہے. اللہ کہہ بھی رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 11 اٹھائیے, پڑھتے جائیے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ اعلان کر رہا ہے, اللہ ہمارا پالنہار ہے, اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, اللہ ہمیں کھلانے والا, اللہ ہمیں پلانے والا, اللہ سب کچھ کرنے والا. اللہ کہہ رہا اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو یاد رکھنا یہ اللہ کی اجازت سے ہے.
फलाने का डर मत दिखाओ। रात को इतने बजे ये हो जाता वो हो जाता है। एक अहले हदीस का बच्चा इसको नहीं मानता, एक सही उल अक़ीदा इसको नहीं मानता। रात में कुछ हो, दिन में कुछ हो, अल्लाह की इजाज़त है। परेशानी आ गई, मुसीबतें आ गई, अल्लाह की इजाज़त है। काम धंधे बंद हो गए, साड़ियाँ नहीं बिक रही, अल्लाह की इजाज़त है। घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सबको वायरल फीवर हो रहा है, बकरी लाकर पूरे मोहल्ले में घुमाने के बाद काट कर उसको खाने, ये नहीं है कि बीमारियां खत्म हुई, ये बीमारी अल्लाह की वजह से। काली बकरी लानी है भाई, घर घर चंदे उतारे जा रहे हैं, काली बकरी लाकर पूरे मोहल्ले में घुमा रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो है पूरी बलाएं, पूरी मुसीबतें, पूरा बुखार, डेंगू सब कुछ लीजिए और उसको काटते फिर खुद ही खा जाते हैं। ये हो रहा है भैया। अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह बिइज़्निही, ये अल्लाह की इजाज़त से। अल्लाह अगर कह दे कि बीमारी ख़त्म तो ख़त्म। अल्लाह ने जब तक फैसला किया हुआ तब तक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे कहता है वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, कि जो अल्लाह पर ईमान ले आए अल्लाह उनके दिलों को दुरुस्त कर देता है, अल्लाह उन्हें हिदायत देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों को हिदायत बख्शता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ों को जानने वाला है। ये बीमारी कब ख़त्म होने वाली, कब आने वाली, कब जाने वाली, कब तुम्हारी साड़ी बिकेगी, कब फलाने का क्या होगा, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। क्या करना है? एक काम तो ये करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगे। नंबर 2 ये करना है कि अपने अकीदे की हिफाजत करें, अकीदे तौहीद की। नंबर 3 कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लीजिए। ये खैर उम्मत का किरदार होगा। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस है, फिर कुछ नहीं बचा आप साहब। हम 2 उसूल अपनाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये हमारा उसूल है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। तो कुरान और हदीस को कब थामना है? जब ये फितने का दौर आ जाए, मुसीबतें आ जाए, बलाएं आ जाए, हम आग की भट्टी में आजमाइश की भट्टी में झोंक दिए जाए, अब उसमें हम तपाए जा रहे, तो वहाँ से हम खरे खोटे बनकर निकले। कुरान हदीस को तो हाथ में थामे हुए, जो भी है ये अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह क्या कहता है? सूरह माइदा आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी कुरान मजीद और खुली हुई किताब आ चुकी है। क्या? बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी कुरान मजीद और खुली हुई किताब आ चुकी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वान सुबुल सलाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान के ज़रिए उस शख्स को सलामती वाली राह की तरफ हिदायत देता है जो अल्लाह की खुशनुदी चाहता है। आगे अल्लाह कहता है वयुखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को फिर क्या होता है, ज़ुल्मात से और अंधेरों से निकाल लेता है और फिर क्या है, उनकी रहनुमाई सीधे रास्तों की तरफ करता है। कब? जब फितने में आदमी पड़ गया। कुरान हदीस आ गया है, कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है, इसको थाम लो, पकड़ लो इसको, और फिर अल्लाह हिदायत देगा, अल्लाह रहनुमाई करेगा हमारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधा मार्ग दिखाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बतलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत होगी। कौन सा रास्ता जन्नत में जाने वाला है? चलो फलाने मियाँ नमाज पढ़ लो, चलो फलाने मियाँ सदका कर लो, चलो फलाने मियाँ कुरान पढ़ लो, अल्लाह हिदायत देगा। कब? जब कुरान को थाम लोगे। ये कुरान का मामला है। ज़रा हदीस उठाइए। इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं, अबू दाऊद की हदीस है 4607 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीयीन अर्राशिदीन। क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर है कि मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लो। अलैकुम बिसुन्नती, नबी की सुन्नत को था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, नबी ने जिन चीज़ों से मना किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो किरदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफ़आल हैं, नबी ने जो किया उनको मजबूती से थाम लो। अब नौजवानों फिर फंस रहे हो तुम। मेरे नबी ने इस बाल से मना किया, हदीस वाज़ेह तौर पर है कि मैं तुम्हें मना करता हूँ उस बाल से जो किनारे किनारे से बिल्कुल मूड दिए गए हों, उड़ा दिए गए हों और बीच में छोड़ दिया गया। नबी कह रहे अलैकुम बिसुन्नती, मेरे सुन्नत को मजबूती से थाम लो। फिर आगे
थामोगे? थाम लो मेरे भाई, थाम लो नौजवान कि तुम बहुत अमन में हो। इससे पहले कि अल्लाह नाराज हो जाए कि मेरे कुरान को भी छोड़े हुए, नबी के फरमान को भी छोड़े हुए हो, अल्लाह कहीं कहर ना नाजिल कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी सुन्नत को, और इसी तरीके से वो खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता थे उनकी सुन्नत को भी मजबूती से थाम लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है तमस्सुक बिहा व अद्दु अलैया बिन नवाजिज़, उनको मजबूती से थाम लो, दांतों से पकड़ लो वो। और इसी तरीके से व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और दीन में नई नई बातों को ईजाद करने से बच जाओ। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर जो भी नई चीज़ ईजाद की जाए, जो भी नई चीज़ नेकी के नाम पर की जाए, दीन के नाम पर की जाए, याद रखिएगा कि वो बिदात है। और इसी तरीके से कुल्लु बिदातिन दलाला, और हर बिदात गुमराही है। मेरे भाइयों, आज कौन नबी की सुन्नत को पकड़ेगा? आज कौन नबी की सुन्नत पर है? कौन खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर है? खैर उम्मत कहाँ है आज? आज खैर उम्मत बस इसी चीज़ में है, टोपी कैसी है, पगड़ी किस रंग का है। मेरे भाइयों, इसी चीज़ में मत रहो। मेरे भाइयों, अपने वहदानियत को, अपने इत्तेहाद को गैरों के सामने मत लाओ कि मेरे भाइयों ये मत बावर कराओ कि अरे ये तो वो है जिनसे हम सलाम करना गवारा नहीं करते, अरे ये तो वो है जिनको हम शादियों में बुलाना गवारा नहीं समझते, अरे ये तो वो है जिनसे हमारा इख्तिलाफ चलता है, अरे ये तो वो है जिनके प्रोग्राम होंगे तो हम कैंसिल करा देंगे, अरे ये तो वो है इनके साथ ऐसा हो तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मौका मत दो, ये ऐसी चीज़ें लोगों को बावर मत कराओ कि हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारे ऊपर जुल्म करने लगे। ये दिखा दो हम वो हैं एक कुरान के मानने वाले, हम वो हैं एक हदीस एक नबी को मानने वाले, हम वो हैं एक काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने वाले, हम वो हैं एक शरीयत को मानने वाले हैं। हम अपना फैसला क़यामत के दिन करेंगे, क्योंकि नबी का फरमान है मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, एक जन्नत में बकिया जहन्नम में जाएंगे। लड़ने की ज़रूरत नहीं है पगड़ी पर, लड़ने की ज़रूरत नहीं है टोपी पर, लड़ने की ज़रूरत नहीं है अहले हदीस पर, वहाबी पर, 24 नंबर पर, देवबंदी पर। फैसला वहाँ होगा कि 73 फ़िरके में एक फ़िरका जन्नत में जाने वाला कौन है, टोपी है, पगड़ी है, या फिर ये नंबर वाले जिनको तुम लोग नंबर दिए पड़े हुए। ये है कि कौन है, फैसला अल्लाह करने वाला है। जब मेरे नबी का फरमान है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, कुरान को पकड़ लो, और उसके बाद फैसला वहाँ पर हो जाएगा। और इसी तरीके से फितनों के दौर में इबादत करो, फितनों के दौर में ज़्यादातर घरों में रहो। फितनों के दौर में तुम लोग जो भी चीज़ करो सोच समझ कर करो, कहीं ऐसा नहीं कि ये हम फितने में पड़ जाएं, गुनाह में मुब्तला हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं ये चीज़ है, ये गुनाह है, ये अल्लाह के नाराज़ करने का ज़रिया। ऐसी चीज़ों को सोच कर और समझ कर करने की ज़रूरत है मेरे भाई। ये चंद बातें थी जो मैं खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप तक पहुँचाना चाहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हुआ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके महबूब खतीब आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस तरीके से सुकून और इत्मीनान से मेरी बात को सुना, और मेरी कुरान और हदीस की बात को आप लोगों ने अहमियत और इसी तरीके से दीगर और चीज़ें जो भी बयान की गई आप लोगों ने उसको सुकून इत्मीनान से सुना। अब मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो लोग फितने में पड़ चुके इलाहुल आलमीन अपने रहमत कामिला के ज़रिए उन्हें फितनों से निकाल दे। इलाहुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर सुधार पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे यहाँ जो भी फितने पैदा हो रहे हैं, जो भी फितने सर उठा रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन फितनों को अपने रहमत के ज़रिए ख़त्म कर दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों